ہر چینل کا ایک نظریہ ہوتا ہے. نظریے سے مراد یہ کہ پالیسی کیا ہے آپ کی کن لائنوں پہ کام کریں گے. تو ہم نے بیسکلی بہت سمپل ایک تو یہ رکھا ہے کہ یہ ہماری جو ٹیگ لائن ہے کہ یورس مائن اینڈ آورس، آپ کا، میرا اور ہم سب کا، یعنی کہ اس میں آپ کی شمولیت اور شرکت بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ. دوسری جو اہم چیز ہے جو نظریے کی بات کی، شاید آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چینل کی ایک کوئی پولیٹیکل افیلیشن یا کچھ ہوتی ہے، تو بیسکلی یہ ایک تو بیلنس جرنلزم پہ بلیو کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری دو امپورٹنٹ چیزیں جو ہمارے جتنے بھی کنٹریبیوٹر ہیں، جتنے بھی اینکرز ہوسٹ ہوں گے، ان کے لیے ایک ہی گائیڈ لائن ہے: اساس پاکستان اور اسلام. ان کے خلاف کوئی اس میں بات نہیں ہوگی، اور اس کو ہم بلکہ پروموٹ کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک سافٹر امیج آف اپنی کنٹری، اپنے پاکستان کی امیج کو کس طرح سے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں، اور جو اسلام کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں. اور یہ بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں اس میڈیم کی پاور کو استعمال کرتے ہوئے کہ ہم بتائیں لوگوں کو کہ مسلمس are peaceful citizens of part of the Canada and Pakistanis are the great resource contributing in the development of this country. یہ ہم بتانا چاہتے ہیں اور اسی کو ہم پروموٹ کریں گے. ہم نہیں برداشت کریں گے کہ کوئی ہمارے ملک کو برا کہے یا ہمارے دین کو برا کہے، لیکن اس کا جواب ہم دلیل سے دیں گے، برائی سے نہیں دیں گے. تو یہ ہمارا نظریہ ہے. اور آپ ایسا کیا مختلف کرنے جا رہے ہیں؟ تو بیسکلی جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ بہت سارے چینلز یہاں موجود ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اپنی اپنی فیلڈ میں ہر شخص کی اپنی ایک خاص کوالٹی ہے جس کو وہ لے کے چل رہے ہیں. اسی طرح سے ہم بھی اسی میدان میں، چونکہ پرنٹ، براڈ کاسٹنگ اور الیکٹرانک میڈیا میں کافی عرصے سے ایک تجربہ ہے، اس کو ہم کنسالیڈیٹ کر کے ایک ایسا پیکیج لے کر آ رہے ہیں کہ جہاں ہمارا لوگوں کے ساتھ تعلق ہوگا، جہاں سٹیزن جرنلزم کو ہم زیادہ پروموٹ کریں گے. عوام کے ہاتھ میں جو ہے وہ کیمرہ اور مائک ہوگا اور عوام ہی اس کو آپریٹ کریں گے. ہمارا نیٹ ورک، ہماری سوشل میڈیا کی پاور اور ہمارا جو ریسورس ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے میسیج کے ساتھ ہم کیسے جڑیں گے اور عوام کیسے جڑیں گے، یہ ہمارا. Assalamu alaikum everyone. My name is Sharif Sabawi. I am the MPP for Mississauga Aaron Mills, and I'm here today to join and congratulate Anis and Mubin for the kickstarting of their new channel A1 TV Canada. اس وقت ہم موجود ہیں اوتاق بینکوٹ ہال میں، کینیڈا کے شہر مسیساگا میں، اور لانچنگ سیرمنی ہونے جا رہی ہے A1 ٹی وی کی. A1 ٹی وی جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ UK سے چلتا ہے، یونائٹڈ کنگڈم سے، اور اس کی متحدہ عرب امارات سے لے کر پاکستان کے کئی شہروں میں، اس کے علاوہ پورے امریکہ میں اور اب کینیڈا میں اس کی لانچنگ ہو رہی ہے. اور انشاءاللہ آپ کو جلدی یہ آپ کی ٹی وی اسکرینس پہ بھی نظر آئے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو سوشل میڈیا پہ بھی اس کی پریزنس نظر آئے گی. اس وقت ہمارے پاس ساتھ موجود ہیں A1 ٹی وی UK کے اور A1 ٹی وی نیٹ ورک کے چیئرمین مبین رشید صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور اس کے لانچ کا ان کو خیال کیوں آیا اور یہ اس کے کیا مقاصد ہیں، یہ بھی بات کریں. جی مبین. جی انیس بھائی، بہت شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے بتایا کہ UK کے اندر ہم پچھلے 5 سال سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا کمیونٹی چینل کا وہاں پہ ہم نے کانسیپٹ دیا تھا، تو ہمیں لگا کہ اس کی گنجائش ہے کہ ہم پوری دنیا میں اس کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. تو یہ پینڈیمک کے بعد ہم نے اس کو انشاءاللہ ایکسپینڈ کیا ہے. دبئی میں جس آپ نے ذکر کیا، پاکستان کے اندر ہمارے پاس ویسے ہی پیمرا سے لینڈنگ رائٹس بھی ہیں، اور وہاں پہ ہمارا چینل آلریڈی موجود ہے. اور اب یہاں پہ الحمدللہ آپ جیسے دوستوں کی وجہ سے اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں پہ کینیڈا کے اندر بھی آئے ہیں، اور مجھے امید ہے آپ جیسے دوستوں کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ پازیٹیو جرنلزم کو کنٹریبیوٹ کر سکیں، اور کوئی بھی ایک اچھا پاکستان کمیونٹی کا میسج جو ہے وہ لوگوں تک جا سکے. شہر کے اندر مبین بھائی کی بہت اچھی کاوش ہے، لے کے آئے ہیں US سے چینل. آپ کو بہت بہت مبارک ہو مبین بھائی، اور انشاءاللہ جو ہے وہ جو بھی پوری کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. آپ ایک نفیس انسان ہیں، آپ نے جو ہے بہت کم ٹائم کے اندر پوری کمیونٹی کو اپنے ساتھ جو ہے جوڑ لیا. تو ایسے لوگوں کی بہت شدید ضرورت ہے. تو آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو بھائی. بہت شکریہ سر. کہ جو اس شہر میں ایک اضافہ ہونے جا رہا ہے ٹی وی اسٹیشن کا، اس کو میں بہت ہی خوش آئند سمجھتا ہوں، اور امید ہے کہ یہ ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ کرتا ہے، لیکن میں اس کو یہ ضرور کہوں گا کہ مطلب کہ باعث نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے بھی، اور نیوٹرل رہ کر کے اپنا کریں. اور ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے یہاں ایک نیا ٹی وی اسٹیشن کھل رہا ہے، اس شہر میں کھل رہا ہے. My name is Zohaib Rahman, as they've introduced myself as well. This is the launch of a new channel that's coming in the GTA, and we're very much excited anytime community members are participating in these kind of events.
is a good sign from us. We know that it's just promoting our community and the voice for us as well. Any kind of public relationships, whether it's legal issues as well, we can cover all of that in this channel. They will have special guests, and even if they ever welcome me or allow me the opportunity, I will be attending their show as well. So I think it's a great start. I think we can only hope for the best for you, and good luck with your endeavor. मेरा नाम इमरान कुरैशी है और मैं एजुकेशन से हूँ। इस चैनल के लिए मैं दो चीज़ें लेके आना चाहूँगा, एक ऑटिज़म अवेयरनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इंशाल्लाह ताला, और एक फर्स्ट एड इन CPR थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो फॉर द एजुकेशनल साइड इंशाल्लाह आई एम इन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब मुबीन रशीद साहब को और फ़ारूक़ी अनीस फ़ारूक़ी साहब को और उनके साथ उनके जितने भी रफ़क़ा हैं उन सबको मेरी तरफ़ से मुबारकबाद। मैं सबसे पहले तो दो साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा, एक तो मुबीन रशीद साहब को और दूसरा अनीस फ़ारूक़ी साहब को। ये इन्होंने जो आज ये लॉन्चिंग की है A1 TV, मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। हमारे इस शहर मिसिसागा में और ओवरऑल GTA में मीडिया से वाबस्ता तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और मीडिया से मेरा ताल्लुक़ भी 2001 से इस लिहाज से रहा है कि मैंने अपना बिज़नेस प्रमोशन को अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को कोशिश की कि सपोर्ट कर सकूँ। आज जब हम ये देख रहे हैं कि मुबीन रशीद साहब ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यहाँ कदम रखना चाहा तो शहर के बहुत सारे मौजूदीन से मुलाकात हुई। लगता यह है कि इंशाल्लाह ये TV चैनल जो शुरू हो रहा है जिनकी आज लॉन्चिंग है हमारी कम्युनिटी में एक नया इजाफ़ा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे जावेद सैयद कहते हैं और मैं अनीस साहब की बहुत खुसूसी दावत पे मार्खम से आया हूँ और इतनी खूबसूरत कहकशां जिसमें इतने प्यारे लोग आए, ये हमारे लिए बड़ी इज़्ज़त अफजाई की बात है। हम यहाँ पहुँचे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस दिन से मैं अनीस फ़ारूक़ी से मिला हूँ, अनीस फ़ारूक़ी के रंगों ने मुझे बहुत मुतासिर किया। Thank you very much, Anis, and it is amazing to see everybody coming on a Saturday morning with everybody, with a family, leaving the family and coming here. That shows the interest from the community, and happy to be here, to the commitment you are doing, the new, I think making an ethnic media is more service to the community than anything else. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अनीस फ़ारूक़ी साहब को मुबारकबाद दूंगा, मुबीन साहब को और शौकत जुनैद साहबा को कि इन्होंने जो ये TV चैनल शुरू किया है और ये एक बड़ा खुशगवार इजाफ़ा है। इस पे जब एक नया TV चैनल आता है तो इस पे दो ओपिनियन है लोगों के। कुछ लोग कहते हैं कि यार ये तो पाकिस्तानी जो कम्युनिटी का एक कौमी मशगला, ये कौमी खेल बन गया है, हर जैसे अनीस भाई ने खुद कहा कि $300 में बन जाता है। लेकिन जैसे कि हम बहुत सारे शोबे होते हैं, जो बहुत सारे प्रोफेशन होते हैं, जैसे रियल इस्टेट का है, मॉर्गेज का है, कोई भी बंदा लाइसेंस लेके या कोई कंसल्टिंग का काम शुरू कर सकता है। असल बात होती है कि क्लाइंट आप कितने रिटेन कर रहे हैं, कितना आप जो है ना उसका आपका कंटेंट क्या है, आप बेच क्या रहे हैं। तो टीवी का भी यही है कि हर आदमी बना सकता है, एंट्री लेवल इज़ लाइक कोई बैरियर नहीं है एंट्री में, लेकिन उसको सस्टेन करना ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो मेरा थोड़ी सी एक नेचर है कि मैं एक एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थोड़ी सी बात करता हूँ जो कि एक एडवाइस भी कही जा सकती है, सजेशन भी की जा सकती है कि प्रेज़ करना तो बहुत आसान होता है। तो मैं अनीस फ़ारूक़ी भाई से ये बात रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग एक छोटा सा एडिटोरियल बोर्ड बनाएं। मेरा ख्याल में आपके लोगों के प्रोग्राम लाइव तो नहीं जाते, तो आप एडिटिंग के बाद जाते हैं कि एडिटोरियल बोर्ड होना चाहिए जो कि देखे, अगर लाइव भी हो तो वो उसको कट करे, क्योंकि मैंने देखा है कि यहाँ पे लोग जो है जो मर्ज़ी सोशल मीडिया जब से जो यूट्यूब की वजह से आया है तो इसमें अब जिसका जो दिल करता है, जिसको आप माइक पकड़ा दें वो वही पता नहीं क्या कुछ बोल देता है। उस पर कोई वो नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। इवन यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, और आपको जो वहाँ से जो रेवेन्यू आता है जो मोनेटाइज होने के बाद वो आपकी
क्लिक पे आता है, रेट ऑफ क्लिक पे आता है। आप हेडिंग लोग ऐसी अजीबो-गरीब लगाते हैं, कोई मजहबी जो ऐसी होती है कोई मतलब जिसमें कोई आलम साहब भी कोई बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो ऊपर जो वो ऐसी वो जो कैप्चर जो करता है उसको जो क्या कहते हैं ना कि क्लिक बेट, जैसे आप मछली का शिकार करते हैं तो वो ऐसा लगता है जैसे शायद कोई पता नहीं कोई पॉर्न डिस्कस हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है ना वो उन पे लगा के करते हैं, क्योंकि उस पर कंटेंट पे आपको रेवेन्यू नहीं मिलता, वीडियो देखने पे मिलता है। अब जो मर्जी, इसलिए लोग बहुत सारे इस चीज़ में बह जाते हैं। मेरा ख्याल है कि अनीस फारूकी साहब एक बहुत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहे हैं और एक मैच्योर पर्सनैलिटी हैं, तो वो इसका ख्याल रखेंगे। मैं आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आपके चैनल को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अनीस फारूकी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह एक और चैनल का इजाफ़ा हुआ है और ये अच्छा इजाफ़ा है, खुशगवार इजाफ़ा है। अनीस फारूकी साहब बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने का। जब आपका मैसेज मिला तो मैंने 2-3 मरतबा सोचा, मैंने कहा यार मैं इसे एक्सेप्ट करूं या ना करूं, क्योंकि नॉर्मली मेरी रेपुटेशन ये है कि मैं मीडिया के बहुत कम इवेंट्स पे जाता हूं इस शहर में। लेकिन मैंने कहा भाई अभी तो मैसेज आया, फिर सुपारी आ सकती है, तो इससे बेहतर यही है कि तुम चले जाओ। तो मैं आ गया, लेकिन तफन्नुन बरतरफ, मजाक तो अपनी जगह पे चलता रहता है। इससे पता चलता है कि हमारा रिश्ता, हमारी रिलेशनशिप अनीस के साथ कितनी पुरानी है और कितनी खूबसूरत है और कितनी प्यारी है। मीडिया का जब इफ्तिताह आप कर रहे हैं एक नए चैनल का, तो मेरे जहन में आज से कुछ 700-800 साल पुरानी, 900 साल पुरानी बात आ जाती है कि जब प्रिंटिंग प्रेस ईजाद हुआ था, तो प्रिंटिंग प्रेस के ईजाद होने से फ़ायदा क्या हो गया कि बाइबल प्रिंट हो गई और क्रिश्चियन मैसेज पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरीके से जब टेलीविज़न आया या रेडियो आया, तो इन फ्रीक्वेंसीज़ के ज़रिए लोगों का एक तो ना सिर्फ कि खबरें पूरी दुनिया में फैलनी शुरू हो गई, बल्कि लोगों का ओपिनियन भी फैलना शुरू हो गया। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा जुमला है जो एडवाइस करूंगा यहाँ पे आपके चैनल को, और उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। बहुत से लोग बैठे हैं यहाँ पे, सीनियर सहाफ़ी जो मुझसे बहुत सीनियर हैं और बैठे, ज़ाहिर है उनकी बारी है अभी। अगर चैनल शुरू किया है तो इख्तलाफ राय की हिम्मत भी रखिएगा, बर्दाश्त भी रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि चैनल का अपना कोई नैरेटिव ना हो, क्योंकि जो चैनल्स नैरेटिव के साथ आते हैं वो पॉलिटिकली इंगेज हो जाते हैं। और चैनल को अनबायस्ड होना चाहिए। प्रिंटिंग प्रेस अनबायस्ड होता है। प्रिंटिंग प्रेस ये नहीं देखता कि बाइबल छप रही है या कुरान छप रहा है। प्रिंटिंग प्रेस का काम तो छापना है। इसी तरीके से मीडिया का काम जो है, दो ही काम है, या तो एडिटोरियल है जो आपकी अपनी राय हो सकती है, खबर नहीं होती, या खबर है जो कि न्यूज़ है। जब न्यूज़ प्रेजेंट करें तो न्यूज़ की तरह कीजिए, और जब अपना ओपिनियन दें तो ये बता कर दीजिए कि ये आपका ओपिनियन है, ये खबर नहीं है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट, और अल्लाह करेंगे आपका चैनल दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। आई हैव कम फ्रॉम मार्कम, माय नेम इज़ कर्नल शेर अली, और मुबीन भाई ने इनवाइट किया, नीस भाई का पता चला। द बेसिक थिंग इज़ मैं आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ फॉर द इन्विटेशन, और प्लस आई विश देम अ गुड लक। थैंक यू मुबीन भाई। Thank you all the colleagues for inviting me today. I welcome Mubin Bhai and A1 Canada to bringing this and launching this Canada A1 channel, TV channel in Canada. I wish you success. Allah Ta'ala आपको कामयाबी दे। हमें एक दूसरे के साथ होना है। ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। ये आपके पॉलिटिकल सोच, आपकी किसी की पीपल्स पार्टी की होगी, किसी की पीटीआई की होगी, लेकिन हम एक हैं। सबसे बड़ी ज़रूरत है, मैं मुबीन भाई से और मैं अनीस भाई से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस कम्युनिटी को जो बहुत छोटी है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है अभी, और ना इतनी ग्रो हुई है। हम तो कहते हैं ग्रो हुई है, लेकिन नहीं हुई एक्चुअली। इसको मुत्तहिद करना है एक ही इसमें कि हम एक हैं। तो बेस्ट विशेस फॉर अनीस भाई और मुबीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इनवाइट करने का। बहना आपके भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आप लोग हमेशा हमारे राइड रहें। तो अल्लाह आपको सलामत रखे और अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो बात ये कि नहीं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि घोड़ा तो हर कोई लै लेंदा, लेकिन उन्हें रखना मुश्किल गल है। तो अनीस भाई जो हैं, इन्होंने घोड़ा तो ले लिया है, अब इसको संभालना, चलाना वो कैसे है, ये तो वक्त बताएगा।
तारीफ़ इनकी इसलिए नहीं करना चाहता कि अगर शुरू में तारीफ़ कर दी तो बाद में तनकीद कैसे करूँगा। तो नाम सुना था अनीसो दबीर, मीर अनीस मीर दबीर। ये पहली मर्तबा हुआ है कि अनीस साहब के साथ मुबीन रशीद देखा है हमने। तो मेरी बेस्ट विशेज़ हैं जी इनके लिए। और मीडिया हमेशा वही मीडिया होता है, अखबार हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, जिसके अंदर कुछ दोस्त साहब आप कह रहे थे अनबायस्ड, जो अनबायस्ड होता है वो मीडिया नहीं होता है, वो आपका प्लेटफॉर्म होता है। वो आपका मीडिया नहीं होता, आपका प्लेटफॉर्म होता है। वो बेशक पीटीआई का हो, पीपल्स पार्टी का हो या मुस्लिम लीग का हो। तो अनीस भाई की वैसे भी आदत ये है कि ये सबको ज़रा रगड़ा दे के रखते हैं। तो समझता हूँ जो रगड़ा देने वाले लोग हैं वो कम ही खुशामद पसंद होते हैं। तो मैं इनकी कोई खुशामद नहीं करूँगा, सिर्फ स्वाब बेस्ट विशेज़ के। बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको तरक्कियाँ दे। बहुत अरसा काम किया, लेकिन बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जो चल रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि प्रोफेशनलिज्म की बहुत ज़रूरत है। अनीस भाई 1999 में मैंने रेडियो टेलीविज़न शुरू किया था, तो उस वक्त से काम कर रहे हैं। अनीस भाई एक प्रोफेशनल आदमी है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, मुबीन भाई को और अनीस भाई के प्रोफेशनलिज्म के लिए बहुत ज़रूरत है और ज़रूरत रहेगी। तो इसी तरह ये प्रोग्राम करते रहे तो हम देखते रहें, तो इससे सीखते रहें। बहुत शुक्रिया आपका, बेस्ट विशेज़ सर। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि एक नया चैनल शहर में इंट्रोड्यूस हो रहा है। और कोई चैनल, कोई न्यूज़पेपर बड़ा नहीं होता, जब कहीं भी कोई कवरेज हो रही होती है तो वो सब मौजूद होते हैं। बड़ा वो होता है जो ख़बर ब्रेक करे और वो फिर बड़ा कहलाएगा। और अगर शहर में बेशुमार अपॉर्चुनिटी है, हर आदमी का हक है कि वो टीवी, न्यूज़पेपर जो भी बनाए, पर यहाँ पर हमने देखा है कि सारे एक दूसरे के इकट्ठे होके उसको डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं, जबकि ये कंपटीटर हैं सारे। और उसमें आपको क्या कहते हैं पंजाबी में भाग लेना चाहिए। और आप अगर अच्छे हैं तो आप नंबर 1 हो जाएंगे। और ये नंबर 1 की दौड़ कभी भी ख़त्म नहीं हुई, ख़बर से नंबर 1 बनता है। अब ये देखना है कि ख़बर इनसे ज़्यादा अच्छी कोई देता है तो वो नंबर 1 है, नहीं तो ये अगर अच्छी नहीं देंगे तो ये नंबर 1 नहीं होंगे। तो इस तरह कंपटीशन चलता रहना चाहिए और हर आदमी का राइट है कि ये काम में अगर उसे आता है तो उसे करना चाहिए। शुक्रिया। अनीस भाई की बड़ी अर्से से ख्वाहिश थी कि वो एक टीवी चैनल लेकर आएँ। तो अनीस भाई आपको मौका मिल गया है। अब आप ग्राउंड आपके पास है, जिस तरह चाहें खेल सकते हैं आप। पहले आपके पास जो थी वो मजबूरियाँ थी, मेरे ख्याल में मजबूरियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो उम्मीद करेंगे कि सच निकलेगा यहाँ से और तगड़ा सच निकलेगा। तो वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बेस्ट ऑफ लक। एक फ़ैमिली का जिक्र करना चाहूँगा कि जो मेरी फ़ैमिली है, मैं और वो मुझे अपनी फ़ैमिली समझते हैं, मैं उनको अपनी फ़ैमिली समझता हूँ। और आज से नहीं, बरसों से। और उनका बड़ा रोल है इस शहर में। उनकी भाई, चाहे भाई हों, चाहे बहनें हों, चाहे वालिद हों, चाहे वालदा हों। और शेख फैमिली एक ऐसी फैमिली है कि जिनके साथ मेरा बड़ा करीबी दिल का रब्ता है। और मैं चाहूँगा कि 360 से यहाँ उमैमा मौजूद हैं शेख, वो यहाँ हमारी हेल्प भी कर रही हैं, हमारा हाथ भी बटा रही हैं और हमें रहनुमाई भी दे रही हैं। तो कुछ अगर आप कहना चाहें। बहुत सारी तालियाँ। Assalamu alaikum. Good afternoon, everybody. First of all, my best wishes for Mobeen Bhai and for Anees Bhai. And thank you for having us. Aapki mohabbat hai that you had called the Scope 360 is here doing the coverage today and is very honored to be a part of it. और हम भी एक नए चैनल हैं. We started off as a social media channel just this year in May, and अब माशाल्लाह we're on IPTV. तो हम भी बिल्कुल ही नए हैं. एंड जो है मैंने अपने लॉन्च में भी ये दुआ करी थी कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, इन सबके काम में बरकत दे. एवरीबडी वर्क्स टुगेदर, जैसे कि बहुत लोग यहाँ कह चुके हैं, देयर इज़ नो बिग नो स्मॉल. कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, नया पुराना जो भी है, एवरीबडी इज़ वर्किंग. तो अपने काम पे फोकस करें. कंटेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. And I think जो एक चीज़ being, जैसे अनीस भाई ने बोला, we've been in the community. My father, Sheikh Qasim Sheikh Saab was in he was in Pakistan Airlines, and ये हम बहुत सालों से देखते में आए. We grew up seeing it कि लोग एक दूसरे के कंधों पे रख के they are trying to come higher. ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये अल्लाह ताला के हाथ में है. So everybody needs to remember कि आप क्या काम कर रहे हैं,
کیا آپ کا فوکس ہے, کیا آپ کا گول ہے. انسان کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کو نیچا کرے یا کسی سے اوپر ہو جائے. So this is all in the Almighty's hand. And Allah Ta'ala, میری دعا personally سب کے لیے ہے. I hope everybody succeeds and everybody should help each other in a positive way, not a negative way. تو میری بہت ساری دعائیں for this new channel, and I hope we work together and you have our support, and Scope 360 supports all media. So بہت بہت شکریہ and once again congratulations. میں چاہوں گا آپ یہاں ایک سیکنڈ رکیں. میں منیبہ سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کی سب سے پہلے دعا مجھے پہنچی تھی جب میں نے صرف اعلان ہی کیا تھا فیس بک پہ, اینڈ انہوں نے اتنے پیار سے دعا دی تھی. اور آپ سب ان کو جانتے ہیں, ہماری ایک ابھرتی ہوئی نوجوان فنکارہ ہیں, بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں, بہت اچھی آرٹسٹ ہیں, اور میری یہ جیسے میں نے کہا میری فیملی ہے, تو ہم کمپیٹیٹر نہیں ہیں, ہم فیملی. جی السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. فرسٹ آف آل مبین صاحب کو میں بہت بہت مبارک کرتی ہوں. آپ کے I forgot جو the other gentleman that's مسعود نقوی صاحب, آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انیس صاحب بھائی جو ہیں وہ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہوں. جہاں تک ہم تو آرٹسٹ لوگ ہیں, ہمیں صرف گانا گانا آتا ہے, اور میرے کولیگز ادھر طارق حمید بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. بٹ دی امپورٹینس اینڈ شعیب اللہ جی بھی اپ کمنگ بڑے ایک آرٹسٹ ہیں ہمارے. ہم لوگوں کے لیے, آرٹسٹ کے لیے میڈیا بہت ضروری ہوتا ہے, پروموشن کے لحاظ سے, کوریج کے لحاظ سے بہت ضروری ہے. ایز آرٹسٹ وی ڈو ریکوائر دیٹ کوریج. اب نئے انداز سے اٹس نو مور جسٹ جرنلزم, اٹ از دا سوشل میڈیا نیٹورک جو اب نیا آیا ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ جو اوریجنل جرنلزم ہے ان کو یہ چیز اڈیپٹ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہوگی, اینڈ دیٹس دا ریالٹی آف دا فیکٹ. بٹ کچھ مہینے پہلے مئی میں جب میں نے لانچ کیا تھا اپنا ایک گانا جو ساؤتھ ایشین سینئرس پہ ریلیٹڈ ہے, تو مجھے ایک جرنلسٹ ہیں, انہوں نے یہ چیز بولی تھی کہ آپ میڈیا کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. اور میں نے یہی بولا تھا کہ جی نو ڈاؤٹ یہ نیا ایک دور ہے, ہمیں جو نئے ہیں ان کو سب سے پہلے تہذیب تمیز کے دائرے میں رہ کے سینئر سے سیکھنا چاہیے, دبے نہیں مگر سیکھیں. اور جہاں سینئرز جو باقاعدہ انہوں نے اتنے سال لگا کے ماسٹرز کیا, پی ایچ ڈی کی جرنلزم ماس کمیونیکیشنز میں, آپ کو ان بچوں کو بھی موقع دینا چاہیے جو ینگر جنریشن ہے, جو نیو اپ کمنگ یہ سوشل میڈیا ہے. اس کو آپ کو ان کو سب سے پہلی چیز ہے ایتھکس. میڈیا ایتھکس از دا بگیسٹ, اینڈ مائی جرنلزم فرینڈز مسٹر لطافت صدیقی صاحب اس چیز کو بالکل کنفرم کریں گے کہ میڈیا کی ایتھکس سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ان کو سکھائیں یہ ٹھیک ہے, یور سوشل میڈیا از ون تھنگ, بٹ if you're a social media influencer only, you need to learn the ethics of media, bottom line. By taking just selfies and videos at Mehfil about your own self and not the content or the presentation that is being done is disrespectful. یہ بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں, اپنے لباس کو پروموٹ کر رہے ہیں, اپنی ادائیگی کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ پہلے وہ تو دیکھ لیں آپ کوریج کیا کر رہے ہیں. سوشل میڈیا میں بھی ایتھکس ہیں, اس کا پلیز لحاظ رکھیں, سیکھیں, سمجھیں, دونوں ساتھ مل کے کولیبریٹلی ورک کریں. ایک اسٹرکچر بنائیں کولیبریٹلی کہ اس میں ایڈیٹنگ سینسرشپ کو کور کیا جائے. تو یہ بہت ضروری ہے, اینڈ آئی ڈو وش دیم دا بیسٹ. اور میں نے جی بالکل یہ دعا سب سے پہلے لانچ سے پہلے کی تھی, جو مجھے پتہ بھی نہیں تھا مبین صاحب کو دیکھ کے, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بد سے بچائے. تھینک یو سو مچ. تو بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ مبین بھائی سے جو پہلی ملاقات ہوئی, شوز کہ ہی ہیز دا پیشن فار میڈیا. یو کے میں بہت ماشاء اللہ کام کرتے ہیں. مبین بھائی ویلکم ٹو کینیڈا, اینڈ ہوپ فلی جس طرح لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج ہی نہیں بلکہ آپ کی فیوچر میں بھی اس طرح سپورٹ کرتے رہیں گے. اینڈ یو ہیو چوزن دا ون آف دا بیسٹ اینکر کہہ لیں, میڈیا پرسن کہہ لیں, شخص کہہ لیں, انیس فاروقی صاحب. انیس بھائی بہت ساری تعلیم انیس بھائی کے لیے کہ ماشاء اللہ ہی از
वन ऑफ दैट पर्सन हुज़ फॉर द लास्ट 20 years प्लस मीडिया की खिदमत कर रहे हैं। तो आप सबको वेलकम, पूरी टीम आपकी माशाल्लाह आपके पास सारे नगीरे जमा कर लिए आपने टोरंटो के इतनी कम अरसे में, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यस, अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब दावत देने का, और इसके अलावा बहुत बहुत मुबारक अनीस भाई आपको। मैं अरसा दराज से अनीस भाई को जानता हूँ और हमारा अक्सर इनके जो कॉलम लिखे होते हैं उस पर मैं तनकीद भी करता था, इख्तलाफ भी होता था, लेकिन प्यार मोहब्बत की रिश्ता जो हमेशा कायम रहा है। ये एक बहुत अच्छे नफीस इंसान हैं और मेरी दुआ इन सब के लिए है, मुबीन रशीद साहब के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनको इस A1 चैनल में कामयाब करे और एक मुनफरिद मुकाम हासिल करे इस कनाडा में इंशाअल्लाह ताला। हम मेरी दुआएं आप सब लोगों के बहुत साथ। अल्लाह सबको, ब्रदर आपको दिल मुबारक हो, चैनल ओपन करके हमारी मेरे जो बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ हैं। माशाल्लाह आपसे काफ़ी सालों से इंटरेक्शन है और उस इंटरेक्शन में एक चीज़ मैंने देखी है कि आप हमेशा कम्युनिटी को जब भी कहीं ज़रूरत होती है आप मूव फॉरवर्ड होते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से चैनल ओपन करने के लिए बेस्ट विशेज़ हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। पहले तो मैं A1 चैनल जो है उसके मालिकान को, अनीस भाई, मुबीन भाई, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेज़ आप लोगों के लिए। मीडिया के हवाले से बहुत सारे लोगों ने बात की, तो एज ए आर्टिस्ट मैं बात करूँगा, ऑफ कोर्स एज ए सिंगर मैं बात करूँगा। जैसे आपने भी पहले कहा कि बहुत ज़रूरी है कि आर्टिस्ट और मीडिया जो TV है उसका चोली दामन का साथ है और हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि अब हम शायद उस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पे मीडिया को जिस लेवल पे वो अब मौजूद है उससे एक स्टेप ऊपर जाने की ज़रूरत है। अब शायद वो टाइम आ चुका है और वो कहते हैं ना कि इब्तदाई शहर होता है क्या, तो आगे आगे देखिए होता है कि अभी तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मेरी दुआ है कि चैनल दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मुबीन भाई, सबसे पहले तो आई कॉन्ग्रेचुलेट मुबीन भाई और अनीस भाई। मुबीन भाई जो हैं वो चेयरमैन हैं इस TV के और अनीस भाई जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। विश यू गुड लक सर। और मुबीन भाई जैसे दुनिया न्यूज़ से भी रिलेट किया हुआ है उन्होंने, और कुछ लोग इंस्पिरेशन होते हैं सोसाइटी के लिए और प्रोफेशनली। तो मुबीन भाई को बहुत गुड लक कहता हूँ। देखिए, आज एक और टेलीविज़न का जो है इनेकाद हो रहा है, उसके लिए एक तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि एक और टेलीविज़न में इजाफ़ा हो जाएगा, TV A1 जिसे कहते हैं। कल को ये भी हो सकता है